Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Your sunshine in human form. और आज हम देख रहे हैं, yes it's been a week but we are back. We had missed out on Shan's new video for Ramayan और वो टाइटल है why the Western audience will not care about Ramayan. I think it's like a detailed analysis type of video as to how it's going to globally impact because उसी की चर्चा हो रही है, वही करने जा रहे हैं हम. Sure, it's for us, but it's also for letting people know our culture, us, and representing us. I don't know where did I get cut. जो भी है हम देखेंगे और let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो रहेगा और हम कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा. That's what it is. All from the beginning, play. Our starting objective also was not to make it for our own country, but to make it for the rest of the world also. It's the biggest objective which we had. We wanted to bring Comic Con, the best from India to the rest of the world. Very excited International about Comic presenting Con. Ramayan in a way that's never been done before for India or for the world. My vision was always to put Indian stories on global platform, and Namit also believes in the same thing. Globally, we need to present our stories, or our filmmakers need to tell their stories in the largest possible way and to have the global audience. So that was my dream. With nearly 4,000 crore rupees invested in two parts, Namit Malhotra रामायण को लेके जाना चाहते हैं from India to the world. And from day one he has been very clear about this. अब ये है तो एक बहुत ही ambitious dream. लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि how logically achievable is this dream? Massive promotions in cinema and San Diego Comic Con, expansive interviews with North American media, and a mammoth distribution tie-up with Sony Pictures, जो maximum Indian filmmakers के Sony लिए is एक सपना ही. so Namit scary. Malhotra being the producer of this film हर वो चीज कर रहे हैं that he thinks, he is the keyword here, that he thinks will put Ramayan on the to watch in cinema list of the westerners. And again westerners एक और कीवर्ड है यहाँ पे जिसपे मैं आगे वीडियो में डिटेल में एक्सपैंड करूंगा. फिल्म को हम इंडिया टू द वर्ल्ड लेकर जाएंगे. अब दुनिया इंडिया की फिल्म देखेगी. This will be the arrival of Indian films on the world scene. अब प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स के ये सारे जुमले प्रमोशंस के दौरान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड मोर इंपॉर्टेंटली मीडिया में हेडलाइंस बटोरने के लिए बहुत अच्छे हैं. लेकिन ऑल ऑफ दिस इज नॉट ओनली मच easier said than done, but also at the same time raises some extremely important and potent questions. जब नमित मल्होत्रा कहते हैं वेस्टर्न ऑडियंस, तो आप इस वेस्टर्न ऑडियंस को डिफाइन कैसे करते हो? ये कौन सी सेट ऑफ ऑडियंस है? क्यों एक व्हाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक और अ पर्सन फ्रॉम एनी अदर एथनिसिटी आउटसाइड ऑफ द इंडियंस रामायण को देखेगा? ओवरसीज की कलेक्शंस में Unless it's viral. कैसे करोगे कि कितने एनआरआईज ने फिल्म देखी और कितने वेस्टर्नर्स ने? हाउ डू यू मार्केट दिस फिल्म टू अ सेट ऑफ ऑडियंस जो कंप्लीटली एलियन है टू द कांसेप्ट ऑफ रामायण, हिंदू गॉड्स एंड हिंदुइज्म एज अ रिलीजन विद द राइजिंग एंटी-इंडियन रेसिस्ट सेंटिमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या कुछ गोरे इस फिल्म को एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा समझने की गलती कर सकते हैं? इस फिल्म के मेकर्स और स्टार कास्ट की ग्लोबल अपील क्या है व्हेन कंपेयर्ड टू द हॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड द स्टार्स जिनकी फिल्में इंडिया में मैसिव कलेक्शंस करती हैं? विजुअल अपील और विजुअल ट्रीटमेंट बोल कर इस फिल्म को वेस्टर्न ऑडियंस को मार्केट तो करा जा रहा है, लेकिन क्या ये विजुअल्स वेस्ट की ऑडियंस के लिए बहुत ही कॉमन और यूजुअल नहीं है? क्या नमित मल्होत्रा को फिल्म की डोमेस्टिक यानी कि इंडियन सक्सेस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए रादर देन सीकिंग फॉरेन वैलिडेशन? एंड हाउ Ramayan could be a right step in the right direction, but not the right step in the right direction for India to the world. तो बस आज इन्हीं लॉजिकल सवालों पे बात करेंगे and with data and records and examples I love analysis कोशिश videos. करेंगे नमित मल्होत्रा की रामायण को टू द वर्ल्ड ले जाने की इस एम्बिशन को. तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस. सारे क्वेश्चंस बहुत ही वैलिड है and it frankly makes sense as to it's good for them to promote it here more than out. वेस्ट में ले जाने की एम्बिशन को समझने के लिए हमें समझनी होगी एक ऐसी चीज जो सरफेस लेवल पे तो बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और ये चीज है दैट एग्जैक्ट सेट ऑफ ऑडियंसेस जिसको नमित मल्होत्रा रेफर करते हैं एज द वेस्टर्न ऑडियंस. जैसे कि नमित मल्होत्रा ने एलए टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, इफ द पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, सो कौन है ये पीपल इन द वेस्ट एंड हाउ डू यू डिफाइन them according to Namit's understanding? तो जैसे कि मैंने कहा था इसका आंसर बहुत सिंपल है और इसका आंसर है according to Namit's understanding anybody who lives in the western countries, for example the North American continent minus the NRIs. इसको और सिंपलीफाई करके बताता हूं. According to Namit Malhotra, the west for this film is the set of white, blacks and Hispanics and any other ethnicities outside of the Indians. कोई भी non-resident Indian, any first generation and onwards Indian American, Indian Canadian, Indian Australian or Indian whatever is
not the Western audience that Namit Malhotra is referring to. और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक NRI या फिर ये जो NRI सेट ऑफ ऑडियंस है, बाहर रहती भी कितने टाइम से हो, इनको रामायण के बारे में पता होगा। और इन्हीं NRIs के बच्चे भी जो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में ही पले बड़े क्यों ना हो, even they will grow up learning about Hindu religious epics like Ramayana and Mahabharata at their homes. इस सेट ऑफ NRI ऑडियंस के लिए the story of Ramayana is not alien at all. तो जब नमित मल्होत्रा कहते हैं that I want the Westerners to watch this film, then he clearly does not include the NRI diaspora living abroad. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये NRI diaspora तो रामायण देखने जाएगा ही वेस्ट में। नमित सिंपली मीन्स कि वेस्ट में जो सेट ऑफ ऑडियंस हिंदू कल्चर से और साथ ही हिंदू रिलीजियस एपिक्स की हिस्ट्री से बिल्कुल ही अपरिचित है, बिल्कुल ही एलियन है, वो है मेरे हिसाब से वेस्टर्नर्स, और मैं चाहता हूं कि वो इस फिल्म को देखें। अब नमित मल्होत्रा की इस एम्बिशन में कोई गलती नहीं, लेकिन इस एम्बिशन में एक जबरदस्त आयरनी है और मल्टीपल जबरदस्त फ्लॉज। द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स इन द वेस्ट, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स इसलिए नहीं बनती क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाली मल्टीपल एथनिसिटीज उसकी टिकटें खरीदती हैं। वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स इन फॉरेन कंट्रीज इसलिए बनती हैं बिकॉज इन द कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड एक्सेट्रा, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो ये टिकटें खरीदती है भारी मात्रा में। ये जो आजकल नया ट्रेंड चला है कि फिल्में बताती हैं ओवरसीज मार्केट में इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, ये सारे कलेक्शन नंबर्स इंडियन ऑडियंसेस, स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंसेस लिविंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। इंडियंस के अलावा भारी मात्रा में वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी और एथनिसिटी के लोग इंडियन फिल्में नहीं देखते। आज तक एट लार्ज सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हुई हैं इस केस में, और वो भी टिपिकली वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं हुई। पहली है दंगल, जिसको देखा गया चाइना में बाय एक्चुअल चाइनीज पीपल, और फिल्म ने कमाए 1.3 बिलियन युआन्स, जो कि बनते हैं 216 मिलियन यूएस डॉलर्स। और दूसरी फिल्म है RRR, जिसको जापान में एक्चुअल जापानीज लोगों ने, एक्चुअल जापानीज पॉपुलेशन ने देखा, और इस फिल्म ने जापान में कमाए 2.4 बिलियन येन्स, जो ट्रांसलेट होते हैं इनटू 14.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। एंड माइंड यू, चाइना एंड जापान में व्हेन कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, इंडियन इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत कम है। एंड दिस गोज ऑन टू प्रूव कि दंगल और दूसरी भी होंगी फॉर श्योर आउट ऑफ दिस। चाइना और जापान के एक्चुअल लोगों ने देखी एज फॉरेन फिल्म्स। आज तक कोई भी ऐसी इंडियन फिल्म नहीं हुई है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज में विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस बहुत ही भारी मात्रा में पैसा कमाया हो। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनफैक्ट हर वो फॉरेन कंट्री जहां पे इंडियन डायस्पोरा, इंडियन इमिग्रेंट्स एक भारी मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे रामायण पैसा कमाएगी ही। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि कैसे कोई डिस्टिंक्शन करेगा कि इस ओवरसीज की आई हुई कलेक्शन में से कितनी कंट्रीब्यूशन थी उस कलेक्शन में एनआरआईज की, और कितनी कलेक्शन आई उन वेस्टर्नर्स से जो नमित मल्होत्रा चाहते हैं इस फिल्म को देखें। और जब ये डिस्टिंग्विश करना नियरली इंपॉसिबल है, जब रामायण के रिलीज के बाद रामायण के ओवरसीज कलेक्शन के नंबर्स आएंगे, तो नमित मल्होत्रा जिन्होंने पब्लिकली ये बोला था कि अगर वेस्टर्नर्स ने ये फिल्म नहीं देखी देन आई विल कंसीडर माई सेल्फ एंड दिस फिल्म अ फेलियर, वो प्रूव कैसे करेंगे कि उनकी टारगेटेड वेस्टर्न ऑडियंस ने इसकी कलेक्शन नंबर्स में कंट्रीब्यूट कितना किया। फॉर एग्जांपल, अगर रामायण यूएस मार्केट में, खाली यूएस मार्केट में 200 से 250 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेती है, जो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं करेगी, इस कलेक्शन नंबर्स में से नमित मल्होत्रा डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे कि कितने इंडियंस ने, एनआरआईज ने टिकटें खरीदी और कितने उन वेस्टर्नर्स ने टिकटें खरीदी जो नमित चाहते हैं टिकटें खरीदे। देयर इज एब्सोल्युटली नो मेट्रिक टू क्वांटिफाई दिस। एंड प्लीज, जैसे टटपूंजी रिव्यूअर्स यहां खरीदे जाते हैं हमारे, वैसे ही वहां पर भी खरीदे जाते हैं जो इंग्लिश फिल्मों को रिव्यू करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं जो सरवाइव ही इंडियन फिल्मों पे बेकार के रिएक्शन देकर करते हैं। Hey, I don't get anything. Give me some money too. लेकिन वो हाइप क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम रिएक्ट करेंगे तो इंडियन ऑडियंस आ जाएगी। और रामायण के बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस ऐसे चैनल्स पे आएंगे, बट दैट इज नॉट द सक्सेस मैट्रिक। इसी चीज का एक एग्जांपल देता हूं और साथ ही एक बबल बर्स्ट कर देता हूं, एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर देता हूं। आरआरआर का सपोजिटली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बहुत नाम हुआ था, राइट? अब आरआरआर ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करी थी 1300 करोड़ रुपए, आउट ऑफ विच 950 करोड़ रुपए इंडियन डोमेस्टिक कलेक्शंस थी, बचे 350 करोड़ ओवरसीज। आउट ऑफ दिस 350 करोड़ 150 करोड़ के आसपास कलेक्ट हुए थे नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से। अब मुझे ये बताओ कि इसमें डिस्टिंक्शन कैसे करोगे कि इस 150 करोड़ रुपए में से नॉन इंडियन ऑडियंस का कितना कंट्रीब्यूशन है टिकट सेल्स की तरफ। पहली बात तो ये इंपॉसिबल है ही जज करना, और दूसरी बात, अमेरिका और यूएस में मिलाकर नियरली 10 मिलियन इंडियंस हैं, विच क्लियरली मींस कि ये पॉपुलेशन साइज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा बड़ा है कि यही पॉपुलेशन साइज अगर टिकटें खरीदने जाएगा उस फिल्म की जो नॉर्थ अमेरिका में लगी है कहीं पर भी, तो ये अकेले ही उस 150 करोड़ की कंट्रीब्यूशन में से 95 to 97% कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे। तो आरआरआर को अपने टाइम पे नॉर्थ अमेरिकन मीडिया एक्सपोजर मिला था, इसमें से कुछ जेन्युइन था और इसमें कुछ खरीदा हुआ भी था। लेकिन ये कैसे पता लगाओगे कि कितने गोरों ने, कितने कालों ने और कितने हिस्पैनिक्स ने, एनीबडी अदर देन द इंडियंस ने ये जो 150 करोड़ की
कलेक्शन हुई उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये कह देना मुंह फाड़ के कि RRR नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत चली थी, लेकिन हमें नहीं पता कितने गोरों ने देखी, सारे इंडियंस ने देख ली, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नॉर्थ अमेरिका में चल गई। ये एक बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मेरी ओके, आई नीड टू पॉज एंड आई नीड टू से दिस कि जो उन्होंने 2 मूवीज़ बताई, आई एम श्योर ही हैज़ डन हिज रिसर्च वेल, बट विद माउथ पब्लिसिटी एंड आई हैव सीन लिटरली पीपल सेइंग इट आउट ऑफ देयर ओन रिकमेंडेशन लाइव्स एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत ही फेमस दूसरी मूवीज़ है। 3 Idiots इज़ वन ऑफ द मूवी दैट इज़ ह्यूज आउटसाइड, हैज़ बीन ह्यूज इज़ अ अंडरस्टेटमेंट। गजनी भी बहुत फेमस है बाहर, which I somehow, I don't know, maybe not as famous as these two, maybe. Like I said, he must definitely have done his research. I know from mouth publicity. I know from genuine people talking on genuine live of their own, and koi paid reaction channel, none of that. Review channel, whatever. None, it's not coming from any of those things. It's coming from literal genuine recommendation जो लोग करना चाहते हैं कि हम जब लाइव करते हैं, ऐसे अरे ये मैंने ये मूवी देखी थी, बहुत बढ़िया थी, watch it. So that kind of thing, and I've heard so much about 3 Idiots and Gajni in that sense. I think I've also heard quite a bit of तारे ज़मीन पर, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने 3 Idiots के लिए सुना है। और सेकेंड ऑफ ऑल मेरे लिए था गजनी, which a lot of people through mouth publicity got into thing, like there was a cycle, like कोई बोल रहा है, फिर वो देख रहा है, कोई और देख रहा है उसको, वो फिर बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, just keeps going. So I need to point it out, it's not just these 2 films. For sure there are more films, maybe these are the topmost, ऐसा हो सकता है, but I'm talking about genuine people who live there who are not Indians watching. This makes so much sense, which is also gets me to the point जहाँ पे लोग comment section में ट्रेलर का जब इवैल्यूएशन हो रहा था और जब बोल रहे थे कि VFX या फिर AI CGI जो भी उसको बोलते हैं वो बराबर नहीं किया गया है, तो क्यों ही करें, हम तो सिर्फ डिविनिटी देखने आए हैं, हम सिर्फ यही देखेंगे. देन हाउ विल इट बी फेमस ऑन द ग्लोबल लेवल, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन दैट वी फॉलो. Why would they care? उनको क्यों केयर करना है unless and until it's so grand, it's so well made, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है. That's exactly how they will watch it, because they don't care about anything else, obviously. Then they get into, oh wow, this is a culture, this is a history. Then it fascinates them. लेकिन वो पुल करने का तरीका तो वही है globally लोगों को. Like I said, unless it goes viral for fortunately good things, it has to be that grand and that well made कि वहाँ के कोई भी लोगों ने भी इतना नहीं बनाया है जहाँ पे ये बना. उसके बाद people will get into the culture and the history कि यार ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें जानना चाहता हूँ whatever. So yeah, you are absolutely wrong with that point, which makes so much sense यहाँ पे देख के कि अगर वही उनका main aim है to get it out of the India and not only focus on here, you need to be so good at it that people will actually give a damn about it when it's not something related to them. Because so much of content available, क्यों करेगा कोई भी? That's a very good question. So now it has to be like so much of weight on their shoulders if that's what they are actually aiming at, जो कर रहे हैं हर जगह बोलने के लिए. Or maybe they are just going there and that's why, because वहाँ के है interviews, इसीलिए वहाँ पे जाके वो बोल रहे हैं because we want Western people to watch us, oh this and that, because they are there. and अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो वहाँ के लोग उन पर ज़्यादा नोटिस करेंगे. That can be a marketing strategy, which I said in the beginning, in between marketing strategy को लेके जो मैंने बात की. So this just makes so much sense, and anyone who would say कि यार हम तो सिर्फ वही देखना है, then you can see it. तुम्हारी सोच अलग है, तुम अलग पर्सपेक्टिव से जा रहे हो देखने के लिए, बट अगर ये पर्सपेक्टिव है इन लोगों का, ये गोल है, तो ये पर्सपेक्टिव नहीं चलेगा. Nobody will care, but we want that to happen. So I hope it changes more and more, it's getting better and better. It comes out really the best they could ever do and does its magic. I really had to pause and say that because इतना मेरे दिमाग में था, I was like, I couldn't say it in between because he's really talking fast. I had no bit spaces to talk and फिर बहुत लंबा हो जाता. At the end I might have forgotten जो मैं बोलना चाहती थी. So yeah, that's there. There's 2 points for sure. And when I said Sony is really scary, yes, Sony is very scary. They actually just take your video down right away, give you a strike. They don't say anything. They don't give you a chance to say, oh, this. Or this is very much true कि yes, paid promotion तो हर जगह होते होंगे, पहले भी होते होंगे, I'm not sure. But यहाँ पे तो मुझे पता ही था
इस मूवी का बहुत 2 महीने पहले आ गया था मैसेज विच आई हैड मैंशनड इन अदर paid PR wala video that I have gotten a message in the group for people giving this. I have not accepted it. I don't do them. I don't get paid for any of the actions I do. I try and want to be as honest as possible. But that's true कि yes होता है, ऐसा मिलता है और कुछ लोग करते भी हैं. How do you differentiate? I don't know. But it's true. It's there. Not all, but yes, it's there. Nothing wrong with promoting it. But saying कि तुम यही review दो, yeah, that's manipulation. Play. कि नमित मल्होत्रा का वेस्टर्न ऑडियंस को केटर करने वाला और टारगेट करने वाला मेट्रिक ही गलत है। इसके बाद खड़ा होता है एक और बहुत बड़ा सवाल, और वो सवाल ये है कि व्हाट इंसेंटिव डज अ नॉन इंडियन हैव टू वॉच अ फिल्म लाइक रामायण। ये कोई सिंपल सी एक्शन, लव स्टोरी या फिर थ्रिलर मिस्ट्री तो exactly डज नॉट रिक्वायर एनी प्री नॉलेज और प्री एजुकेशन बिफोर वॉचिंग द फिल्म। ये हमारा हिंदुओं का एक बहुत ही सेक्रेड रिलीजियस एपिक है जिसके बारे में एक नॉन इंडियन को या तो बिल्कुल नहीं पता होगा, और अगर थोड़ा बहुत किसी नॉन इंडियन को रामायण की कहानी के बारे में पता भी होगा, एक या दो कैरेक्टर्स के बारे में गलती से कहीं सुन भी लिया होगा, तो वो सुन के इतना एक्साइटेड नहीं हो जाएगा कि जाके टिकट खरीद लेगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो की या कभी की। हमारे हिंदुओं के, इंडियंस के रामायण से इमोशंस बिल्कुल वैसे ही जुड़े हैं जैसे बाइबल से इमोशंस जुड़े हैं किसके? क्रिश्चियंस के। द स्टोरी ऑफ रामायण मैटर्स टू अस मोर देन इट मैटर्स टू देम। फॉर एग्जांपल साल 2004 में जब पैशन ऑफ द क्राइस्ट इंडिया में रिलीज हुई थी, किसी ने उसको पूछा भी नहीं था। एंड ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियन डोमिनेंट कंट्रीज में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ऑब्वियसली हैं, वहां पे पैशन ऑफ द क्राइस्ट आइकॉनिकली राइज करी थी। सो द सोल फैक्ट दैट दिस इज अ रिलीजियस एपिक, इस फिल्म को देखने से पहले इस फिल्म की कहानी के बारे में एक सर्टेन डिग्री तक बेसिक नॉलेज होना इंपेरेटिव है, वरना वो वेस्टर्नर्स जो गलती से टिकट लेके बैठ तो गए फिल्म देखने के लिए, लेकिन उनको देख के ये नहीं समझ आ रहा कि ये रिलीजियस एपिक है या फिर ये कॉमिक बुक की कहानी है। मोरओवर इस फिल्म को ग्लोबल अपील देने के लिए इन्होंने रामायण के बहुत सारे एलिमेंट्स को कॉमिक बुक ट्रीटमेंट दिया होगा एक यूनिवर्सल अपील के लिए, ये भी बहुत पॉसिबल है। अब इसके आर्ग्यूमेंट में कुछ लोग ये कहेंगे कि हम इंडियंस ने भी तो ऑडेसी देखी थी, तो ये आर्ग्यूमेंट ही कंप्लीटली इनवैलिड कैसे है वो सुनो। सबसे पहले इन रिलेशन टू I was not very impressed with Odyssey. लिटरेचर की किताबों में हमें ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ाई गई थी जिसमें टच अपॉन कराया गया था अबाउट हेलेन, अबाउट द ट्रोजन वॉर, अबाउट द ट्रोजन हॉर्स एंड एटसेट्रा। ऑफ कोर्स बहुत हेवीली स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन टच अपॉन जरूर कराया गया था सरफेस लेवल पे। 11th और 12th में जो आर्ट लेते हैं वहां पे इलेक्टिव में भी अवेलेबल है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने तो ऑडिसी और इलियड अच्छे से पढ़ी है। तो इफ नॉट अ ह्यूज ऑडियंस, इंडिया में एक साइजेबल ऑडियंस है जिसको ऑडिसी और द ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में क्लू है। अब कितने वेस्टर्नर्स को रामायण की कहानी के बारे में क्लू भी है ये बताओ। वेस्ट में हायर सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल में स्कूल बुक्स में, लिटरेचर में हो चाहे हिस्ट्री में हो, रामायण की कहानी नहीं पढ़ाई जाती। अब दूसरी चीज, इंडिया में मैक्सिमम लोगों ने, मेजॉरिटी जो ऑडियंस ऑडिसी की टिकट खरीद के पिक्चर देखने गई थी, उन्होंने फिल्म की कहानी देखने के लिए पिक्चर नहीं देखी थी, क्रिस्टोफर नॉलन के नाम के चलते फिल्म उन्होंने देखी थी। और इसमें ऐड कर लो द स्टार्स लाइक मैट डेमन, टॉम हॉलैंड एंड रॉबर्ट पैटिंसन, जो ऑलरेडी इंडिया में एक मैसिवली पॉपुलर फैन बेस एंजॉय करते हैं। अब ये बताओ कि नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और डी-नेक को वेस्ट में कितने लोग जानते हैं? अरे नमित मल्होत्रा को तो इंडिया में ही रामायण के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने गूगल करना शुरू किया है, उससे पहले नोबडी हैड अ क्लू हु ही वाज। और स्टारकास्ट की बात करी जाए तो रणबीर कपूर, यश और बाकी की जो इतनी स्टार स्टडेड हमारे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से स्टारकास्ट है रामायण की, उनको वेस्ट में कौन जानता है? वेस्ट में रह रहे इंडियंस को छोड़ के और कोई नहीं। रणबीर ने ये खुद भी बोला था रिसेंटली। What was amazing is that I got to click my first few selfies with Americans who've never ever recognized me. So that's like a dream come true. तो जब जिस रिलीजियस एपिक पे फिल्म है उसकी कहानी के बारे में नहीं पता, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और स्टार कास्ट के बारे में नहीं पता, तो फिर एक वेस्टर्नर जिसके पास रामायण के साथ नियरली 5 से 6 और ऑप्शंस हैं सेम ही थिएटर में, तो वो रामायण क्यों जाके देखेगा? फॉर एग्जांपल 3 नवंबर को गॉडजिला -0 रिलीज हो रही है। ये फिल्म एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आईपी है व्हेन कंपेयर्ड टू रामायण, और इसका पहला पार्ट हिट और क्रिटिकली अक्लेम होने के बाद इसकी एक ग्लोबल अपील भी है। तो कोई क्यों जाके देखेगा रामायण और क्यों नहीं देखेगा वो गॉडजिला? और खाली गॉडजिला ही नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी मल्टीपल फिल्में रिलीज हो रही हैं हॉलीवुड की राइट नेक्स्ट टू रामायण इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो एक वेस्टर्नर जो हॉलीवुड की फिल्में देख के बड़ा हुआ है और जिसके लिए हॉलीवुड की फिल्म देखने से देखने तक एक लिटरल स्टेप डाउन है, वो रामायण क्यों देखने जाएगा? फिल्म की विजुअल अपील बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ग्लोबल है, इसको देखने तो जाएंगे। नाउ लेट्स नॉट लाई टू आवरसेल्व्स एंड बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट है। रामायण का ट्रेलर हम सबने देख लिया है, और उस ट्रेलर में दिखाए गए विजुअल्स को देखने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर, और वो सिंपल सी बात ये है कि रामायण के विजुअल्स इंडिया के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस ये सारे के सारे विजुअल ट्रीटमेंट्स देखकर छिक चुकी है आज से 10-15 साल पहले। हॉलीवुड की कोई भी 10 से 12-15 साल पुरानी लाइव एक्शन फिल्म या फिर सुपर हीरो एक्शन फिल्म निकाल के देख लो, रामायण के ट्रेलर से बेहतर आपको उसमें CGI VFX का काम दिख जाएगा। सो थिंक अबाउट इट एंड टेल मी लॉजिकली, कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करना ये चीज कि कोई एक इंसेंटिव है एक
वेस्टर्नर के पास रामायण की टिकट खरीदने के लिए, जस्ट बिकॉज न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे ब्रांडिंग हो रही है एंड साथ ही स्पाइडरमैन जैसी मैसिव फिल्म के साथ ट्रेलर अटैच कर दिया रामायण का, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग जाके उसकी टिकट खरीदने लग जाएंगे। और इसी इक्वेशन में एक बहुत ही नई और एक बहुत ही चिंताजनक चीज और ऐड कर लो, द राइजिंग एंटी इंडियन सेंटिमेंट नॉट ओनली इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन यूरोप। नाउ ऑल्दो ये सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड से ज्यादा ऑनलाइन है, बट देन अगेन एक फिल्म के अराउंड नैरेटिव सबसे पहले सोशल मीडिया पे बनता है एंड फ्रॉम देयर ऑन पीपल गेट एनकरेज्ड टू वॉच अ फिल्म और टू नॉट वॉच अ फिल्म। तो जब ये फिल्म अमेरिका में जो इस टाइम हॉटस्पॉट है एंटी इंडियन रेसिज्म का, यहाँ पे जब ये फिल्म अग्रेसिवली मार्केट होगी, जो कि होनी शुरू हो गई है, देन व्हाट मेक्स यू थिंक दैट रेसिस्ट्स विल नॉट कम अगेंस्ट दिस फिल्म और उसको ये एक रिलीजियस इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं बोलेंगे? फॉर एग्जांपल टेक्सास में एंटी हिंदू सेंटिमेंट कैसा है, इसके बारे में पढ़ के देख लेना। अब ये कंसर्न आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इट डज एग्जिस्ट एंड व्हाई डज इट मैटर? इट मैटर्स बिकॉज नमित मल्होत्रा की वेस्टर्न पॉपुलेशन जो गोरे हैं वो पहले ही नंबर्स में बहुत कम है इस फिल्म को देखने वाले। अब उनको ये लगेगा कि भैया हमने ऑनलाइन कहीं पे पढ़ा था कि ये हिंदू प्रोपेगेंडा फिल्म है, रिलीजियस प्रोपेगेंडा फिल्म है इंडिया की, तो वो क्यों देखने जाएंगे? वो वहीं डिस्करेज हो जाएंगे। नाउ ऑल ऑफ दिस डिस्कशन ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट दैट व्हाई रामायण इज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट नॉट द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पहले मैं बताता हूं आपको कि ये अ राइट स्टेप क्यों है। रामायण इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार एक जेन्युइनली ग्लोबल पाइपलाइन को असेंबल कर रही है। डीनेक जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं वो वीएफएक्स कर रही है। नमित मल्होत्रा जिनके पास एक्चुअल हॉलीवुड रिलेशनशिप्स हैं वो प्रोड्यूसर है फिल्म के। एआर रहमान के साथ वर्ल्ड फेमस हांस जिमर है। फिल्म का आईमैक्स फर्स्ट वर्ल्ड वाइड रोल आउट। अगर ये फिल्म नमित मल्होत्रा की वेस्टर्न ऑडियंसेस के अमंगस्ट अंडर परफॉर्म भी करती है, तब भी फिल्म के पास बखान करने के लिए, बताने के लिए एक्सेप्शनल प्रोडक्शन क्रू है। फॉर एग्जांपल गाय नॉरिस जिन्होंने स्टंट्स करे थे किस फिल्म के, मैड मैक्स। और इसी के साथ फिल्म में मूवमेंट कैप्चरिंग है जो वो करी है टेरी नोटरी। ये हॉलीवुड के सबसे बड़े मूवमेंट कैप्चरिंग स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स में काम किया था और एवेंजर्स में भी काम किया था। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द डिस्ट्रीब्यूशन मसल ऑफ सोनी पिक्चर्स दैट रामायण हैज। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि एक इंडियन आईपी भी ग्लोबली मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीन्स एक्वायर कर सकती है। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज एंड द कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज रियल। और अब मैं आपको बताता हूं दैट व्हाई रामायण इज नॉट द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, रामायण एज अ फिल्म इज रॉन्ग व्हीकल फॉर एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। ग्लोबल ऑडियंस को जो थिएटर में खींचती है वो चीज होती है क्यूरियोसिटी, रेवरेंस नहीं। और रामायण के मेकर्स इस फिल्म को ग्लोबली मार्केट करते हुए बड़े ही कंफर्टेबली और बड़े ही कन्वीनियंटली ये अज्यूम कर ले रहे हैं दैट एवरीबॉडी केयर्स अबाउट लॉर्ड राम एंड द वर्ल्ड ऑफ रामायण। सोच के देखो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड ड्यून टॉट देयर माइथोलॉजी टू द वर्ल्ड फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम लिटरली जीरो। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ड्यून के वर्ल्ड के बारे में लोगों को पहले से ही पता था और इसको बड़े पर्दे पे देखने की क्यूरियोसिटी जब उनमें जागी तो ये फिल्में बड़ी हिट हुई। एंड फर्दरमोर सिंस ये एक रिलीजियस एपिक है, द मेकर्स कैन नॉट इवन टेक क्रिएटिव लिबर्टीज, जो लिबर्टीज एक फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डिंग डिमांड करती है। रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बिल्कुल यही चीज एक इंटरव्यू में बोली है। When what is known, how becomes more important, you know, and there's nothing much you can do with the what because that's the sacred text which has been given. It's sacrosanct. You have to maintain the वरना आदि पुरुष सिंपल बनेगी। सी बात है, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कुछ गलत छेड़ाछाड़ी कर दी हमारे एपिक्स के साथ तो दंगे हो जाएंगे। टू ट्रैवल यू नीड फ्रीडम बट टू सर्वाइव एट होम यू नीड फेथफुलनेस। ये इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक स्ट्रक्चरल ट्रैप है, मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, बड़े पर्दे पे स्पेक्टिकल दिखाना, लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल दिखाना हॉलीवुड का ए गेम है, उनकी होम टर्फ है। 1600 से 4000 करोड़ की फिल्में इज मिड टियर मार्वल बजट फिल्म मेकिंग। कंपीटिंग विद हॉलीवुड ऑन सीजीआई पैरिटी फॉर बॉलीवुड इज नियरली इंपॉसिबल। आरआरआर ने जो भी थोड़ी बहुत वेस्टर्न मार्केट क्रैक करी थी, अपना बज वहां पे जनरेट किया था, वो वीएफएक्स और सीजीआई ट्रीटमेंट की वजह से नहीं किया था। वो इस फिल्म ने किया था विद अनहिंज्ड ओरिजिनल स्टोरी, स्ट्रीमिंग, डिस्कवरी एंड वर्ड ऑफ माउथ पर। आरआरआर और राजामौली ने पहले प्रायोरिटाइज करा डोमेस्टिक सक्सेस और फिर वो फिल्म ऑटोमेटिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुई। पैरासाइट एंड स्क्विड गेम्स जो कि कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों ग्लोबल फिनोमेना कैसे बने? इन दोनों में ही कल्चरल स्पेसिफिसिटी थी, ये अपने रूट्स से अटैच्ड रहे और यही इमोशन पहले उनकी कंट्रीज में ब्लो अप हुआ और फिर यूनिवर्सल इमोशन में तब्दील हो गया। Like I said, it can be viral. रिक्वायर्ड है इन चीजों को देखने में। पर नमित मल्होत्रा की तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही वेस्टर्न ऑडियंस है, डोमेस्टिक मार्केट तो प्रायोरिटी है ही नहीं उनकी। तीसरी चीज, वन बेट और वन प्रोजेक्ट, Not a very good thing to say. अल्टीमेट मार्केट एंट्री। कोरियन सिनेमा ग्लोबल कैसे हुआ? उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया कंसिस्टेंट आउटपुट का, स्ट्रीमिंग स्ट्रेटजी और स्टेट बैक्ड कल्चरल एक्सपोर्ट का। एक टेंट पोल फिल्म डाल दी या फिर एक टेंट पोल वेब शो डाल के ये नहीं बोला ओ भाई हम तो पूरी दुनिया में पहुंच गए। ये बात बहुत सिंपल है समझने के लिए, दैट अ सिंगल मेगा फिल्म इज लाइक अ लॉटरी टिकट नॉट अ पाइपलाइन। रामायण तो हम दुनिया भर में पहुंचा देंगे, लेकिन बाकी फिल्में जो बनती हैं बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में, उनका क्या, उनकी पाइपलाइन कहां है? चौथी चीज, अब्रॉड में रिलीजियस फिल्में रिलीज करना रिस्की मैटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न
इंडियन मीडिया बहुत ही इनफेमस है इंडियन माइथोलॉजीज को इंटरप्रेट करने में। ये बहुत लाइकली होता है कि ये चीजों को किसी और ही लेंस से प्रेजेंट कर देते हैं। तो पूरी डिस्कशन की बॉटम लाइन ये है, एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ये फिल्म इसलिए है बिकॉज इट सिंगल हैंडेडली बिल्ड्स यूनिवर्सल कैपेबिलिटी, और नॉट द राइट स्टेप इसलिए है बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स आर वन बाय एक्सपोर्टेबल स्टोरीज एंड सस्टेन्ड स्लिट्स एंड नॉट बाय आस्किंग द वर्ल्ड टू अटेंड समवन एल्सेस प्रेयर एट IMAX प्राइसेस। जस्ट बिकॉज रामायण हमारे दिलों में रहती है उसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के दिल में रहेगी। और मैं तुम्हें आज इस वीडियो में प्रेडिक्ट करके बता देता हूं कि इस फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करा जाएगा। पूरी दुनिया में रह रहे NRIs, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जिनकी इंडियन रूटिंग है, कहीं ना कहीं रामायण के बारे में जानते हैं, वो इस फिल्म को जरूर देखें। व्हिच मींस दैट ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में 350 से 500 मिलियन तक कलेक्ट कर सकती है। और जब मेजॉरिटी इसकी कलेक्शन NRI डायस्पोरा से ही आएगी, नमित मल्होत्रा और उनकी टीम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे कि देखो ओवरसीज मार्केट में हमने 500 मिलियन बना दिए, पहली फिल्म बन गई इंडियन जिन्होंने 500 मिलियन बनाए। और 500 मिलियन बनाए, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो 500 मिलियन बनाए गए ऑन द बैक ऑफ द इंडियन NRI डायस्पोरा। दूसरी चीज ये दिखाने के लिए कि फॉरेन में व्हाइट लोगो में कितनी ज्यादा हाइप है इस फिल्म की, क्या करा जाएगा, फॉरेन चैनल से फेक रिव्यूज और फेक रिएक्शंस कराए जाएंगे। जिनको कुछ नहीं पता होगा इस फिल्म के बारे में वो भी इस फिल्म को अच्छा बोले। मीडिया कवरेज तो इन्होंने अमेरिका में पहले ही इकट्ठी कर ली है, LA टाइम से लेके कहीं पर भी आजकल आप पेड आर्टिकल कहीं भी छपवा सकते हैं। टुवर्ड्स द नियरिंग ऑफ द रिलीज ऑफ द फिल्म ये और भी ज्यादा क्वाड्रुपल हो जाए। एट लास्ट आई वुड जस्ट वांट टू से वन थिंग, रामायण को फॉरेन वैलिडेशन की जरूरत नहीं। ये कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में रहती है। ये फिल्म इंडिया में ही इतनी जबरदस्त तरीके से देखी जाएगी, इतना जबरदस्त पैसा कमा लेगी कि वेस्टर्न कलेक्शन इसके सामने बहुत ही बोना लगेगी। नमित मल्होत्रा का ये वेस्ट को अपीज करने का जो स्टांस है, ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लगता है, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, ये बिल्कुल बेसलेस और फ्लॉड। लेट द फिल्म बिकम अ मेजर सक्सेस इन इंडिया एंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑटोमेटिक वायरल होगी, इसको अपने आप वैलिडेशन कहीं ना कहीं मिलने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल RRR। तो चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। This has to be one of the most brilliant analysis videos that has come out of Shant's channel up until today. हमने काफ़ी सारे analysis videos देखे हैं इनके पहले. This has to be so well done and I somehow agree with every single point that is put except for the point जब उन्होंने बोला सिर्फ ये 2 movies थी जो बाहर ज़्यादा famous हुई है, because I have heard other movies, these 2 movies which I said, ऐसा हो सकता है ये सबसे ज़्यादा है, मे बी नॉट, मे बी येस, ही इज़ जस्ट ह्यूमन बीइंग, सो गलती हो सकती है उनसे भी, राइट। लेट्स जस्ट पुट एवरीवन एज इन अ ह्यूमन लेवल, कोई भी गलती ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स जस्ट नॉर्मल। वाओ, दिस इज़ रियली वेल सेड एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। मतलब क्यों ही उनको ग्लोबल लेवल पे रामायण को और प्रायोरिटी क्यों बनाना है? This also makes sense thinking of why Western validation इस मूवी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। श्योर फॉर अदर मूवीज़ वाई नॉट, बॉलीवुड को उतना दर्जा क्यों नहीं दिया जाता जितना हॉलीवुड को दिया जाता है? इट्स जस्ट नॉट ओके बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज़, आई सी लॉट ऑफ के ड्रामास, आई सी सी ड्रामास, जापानीज़। अभी तो तुम सब देख सकते हो, तुम स्पेन से देख सकते हो, तुम सीरिया से देख सकते हो, तुम टर्किश देख सकते हो, तुम इंडिया के देख सकते हो, एंड आई रियली डोंट थिंक वी आर एनीथिंग लैकिंग। we have done a great job, sure lot of improvements needed, but ऐसा तो नहीं है ये जो सब लोग बनाते हैं वो सब हम pitch perfect बनाते हैं, नहीं ना, we also do it, then why are we not on the same standard and we just kind of, I don't know, that makes no sense to me। और वही है ना कि तुम अगर किसी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो, तुम वो उसको स्टैंडर्ड बना रहे हो, क्यों बनाना है किसी और को स्टैंडर्ड? हमारी ऑडियंस, आई एम वेरी श्योर रामायण इज गोना बी हिट हियर एंड आई एम ग्लैड कि सी माउथ पब्लिसिटी इज गोइंग टू हैपन बिकॉज हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ पे रील्स, बहुत सारी रील्स बन रही है, ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी पोस्ट वायरल हो सकती है, यूट्यूब पे वीडियोज़ वायरल हो सकते हैं, शॉर्ट्स वायरल हो सकते हैं, राइट। सो hopefully not paid, and even if paid, if done in the right way for the right reason, I don't mind it being paid as well. So if that works out, बहुत अच्छी बनाई है, यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँचेगा, ट्वीट से पहुँचेगा, कहीं से पहुँचेगा, फिर मे बी someone will watch it there and it blows up. That which what I already said, मैंने पहले ही बोला, वो जो अगर वायरल हो गया तो कोई उसको नहीं रोक सकता है, but for that you have to be at that standard for sure, because they definitely are not interested in our history. क्यों? Unless something gravitates them towards the whole movie,
सम क्यूरियोसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है उसके लिए. एंड या एंड आई डोंट अग्री विद वन थिंग एटलीस्ट कि जो जितने भी उन्होंने रिएक्शन चैनल्स दिखाए गए यहाँ पे, जो बहुत जिनको बहुत व्यूज़ मिलते हैं इंडियन ऑडियंस से फॉर डूइंग द इंडियन कंटेंट, तो आई डोंट थिंक ऑल ऑफ देम मस्ट बी गेटिंग पेड promotions, but they for sure are getting a lot of attention from Indian population and massively good reactions from them. तो क्यों नहीं करेंगे ज़्यादा रिएक्शन? ऑब्वियसली जिसकी डिमांड है उसी का सप्लाई होता है, तो वही करते हैं वो लोग. कितना आई हैव नेवर सीन द रिएक्शंस, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इट्स ट्रू, हाउ मच दे रिसर्च और डोंट, बट आई डोंट थिंक एवरीथिंग और एवरीवन जो भी चैनल्स दिखाए गए माइट बी हैविंग और आर PR. सम श्योर, सम नॉट, बट या आई मीन पहले देखो, ठीक है, सोचो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, लाइक आई ऑलवेज से. सो इट्स लाइक दैट फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे भी लोगों को बस दे ही रहे हैं वो लोग पैसे. सो आई जस्ट होप यू डोंट नीड इट. आई जस्ट होप इट वर्क्स आउट वेल. पोटेंशियल तो बहुत है. Anyway, I hope it works out, but I really enjoyed this video. It was deep and it was something to learn for. I enjoyed this. I'm glad I watched this video. I hope you did too. And I'll see you guys next time. Bye, babies. Love you. Let me know what you think.